નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝમાં હું છું આપની સમક્ષ તનુ ખટીક। જો વાત કરીએ તો આજે વિશ્વમાં ભારતના નામનો ડંકો વાગશે। મહત્વનું છે કે આજે ભારતનું ચંદ્રયાન-3 જે છે તે આજરોજ સાંજે ચંદ્ર પર લેન્ડ થવાનું છે। મહત્વનું છે કે દરેક ભારતીય માટે આજે ગૌરવની ક્ષણ છે। ચંદ્રયાન-3 લેન્ડિંગને લઈને દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં પણ ચંદ્રયાન-3 લેન્ડિંગને લઈને મહાનગરપાલિકા પણ તૈયારીઓથી સજ્જ જોવા મળી રહ્યો છે। 126 LED સ્ક્રીન પર ચંદ્રયાન-3નું લાઈવ પ્રસારણ અમદાવાદ ખાતે બતાવવામાં આવશે। જો વાત કરીએ તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચંદ્રયાન-3ને લઈને વિશેષ તૈયારીઓ કરાઈ છે। તો આજરોજ ચંદ્રયાન-3 આજે સાંજે ચંદ્ર પર લેન્ડ થશે। તો મહત્વનું છે કે દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વનું છે કે વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં આજરોજ સાંજ સુધી પૂજા ચાલશે। અનેક જગ્યાએ જો વાત કરીએ તો દેશમાં વિવિધ સ્થળોએ પૂજા અર્ચના કરીને પણ ચંદ્રયાન-3ના સફળ લોન્ચ માટે પૂજાઓ કરવામાં આવી રહી છે। મહત્વનું છે કે ભારત એક ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે સંકળાયેલો દેશ છે। દેશમાં વિવિધ સ્થળોએ લોકો જે વાત કરીએ તો લોકોની ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર તેઓ આજરોજ ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે। તો ચંદ્રયાન-3 આજે સાંજે 6 વાગતા જો છે ચંદ્રયાન-3 લેન્ડ કરશે। જ્યારે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ચંદ્રયાન લેન્ડ કરશે। જ્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। દેશના વિવિધ ખૂણાઓમાં જો વાત કરીએ તો દેશના વિવિધ ખૂણાઓમાં પૂજા અર્ચના થઈ રહી છે। ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે લોકો પૂજા કરી રહ્યા છે, પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। તો અમદાવાદ ખાતે પણ મહાનગરપાલિકા તૈયારીઓથી સજ્જ જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદમાં 126 LED સ્ક્રીન પર ચંદ્રયાન-3નું લાઈવ પ્રસારણ બતાવવામાં આવશે। તો મહત્વનું છે કે ચંદ્રયાન-3ને લઈને છેલ્લી 15 મિનિટ ભારે છે તેમ કહેવામાં આવી રહી છે। તેના લેન્ડિંગની જો હાલ દેશભરમાં ચંદ્રયાન-3ના લેન્ડિંગને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ચોક્કસથી 14મી જુલાઈના રોજ બપોરે 3:35 કલાકે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાથી ચંદ્રયાન-3 લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। મહત્વનું છે કે લેન્ડિંગ થતાં જ તે 41 દિવસમાં 3.84 લાખ કિલોમીટરની સફર કરીને નવો ઇતિહાસ લખશે। તો લેન્ડરના ચાંદ પર લેન્ડ થતાં જ રેમ્પ ખુલશે અને પ્રજ્ઞાન રોવર ચંદ્રની સપાટી પર આવશે। મહત્વનું છે કે ભારત એક એવો પ્રથમ દેશ બનશે જે ચંદ્રની દક્ષિણ સપાટી પર જો વાત કરીએ તો દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડ થશે। તો ચોક્કસથી વિક્રમ લેન્ડર પ્રજ્ઞાનની જો વાત કરીએ તો તસવીર લેશે અને પ્રજ્ઞાન વિક્રમની તસવીર લેશે। આ ફોટોઝને પૃથ્વી પર સેન્ડ કરવામાં આવશે। જો ભારત પોતાના આ મિશનમાં સફળ રહ્યું તો આવું કરનાર ભારત પહેલો દેશ બનશે। આ ક્ષણ માનવા માટે દેશભરમાં લોકો ઉત્સાહી જોવા મળી રહ્યા છે અને ઠેર ઠેર લાઈવ ટેલિકાસ્ટનું પણ આયોજન કરાયું છે। તો મિશનની સફળતા માટે દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ હવનો કરવામાં આવી રહ્યા છે। વૈષ્ણોદેવી ગુફામાં આજ સવારથી જ ચંદ્રયાન-3 મિશનની સફળતા માટે પૂજાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। તો મહત્વનું છે કે આ પૂજા ચંદ્રયાન-3 લેન્ડ થશે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે। તો ચોક્કસથી ભારત દેશ એક ધાર્મિક માન્યતાઓથી જોડાયેલો દેશ છે। ધાર્મિક સંસ્કૃતિ જે કહેવાય તે ભારત દેશ સાથે જોડાયેલી છે। તેના પગલે ચંદ્રયાન-3ના જો વાત કરીએ ચંદ્રયાન-3ના તેને સફળતા માટે આજરોજ ભારત દેશમાં વિવિધ જગ્યાએ પૂજા અર્ચના થઈ રહી છે। અનેક વિસ્તારોમાં લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે ચંદ્રયાન-3 સફળ થાય। તો ચોક્કસથી જો વાત કરીએ તો ભારત દેશ જે છે તે પોતાના આ મિશનમાં જો ચંદ્રયાન-3 મિશન સફળ રહ્યું તો ભારત દેશ આ ચંદ્રયાન-3 જો વાત કરીએ ચંદ્રની દક્ષિણ સપાટી પર જો વાત કરીએ તો લેન્ડ થનારું પ્રથમ દેશ બની જશે। આ ક્ષણ માણવા માટે દેશભરમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જો વાત કરીએ તો ચંદ્રયાન-3નું ઠેર ઠેર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ માટે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મહત્વનું છે કે અનેક વિસ્તારોમાં દેશના અનેક ખૂણામાં લોકો ઉત્સાહી છે। જો વાત કરીએ તો સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ પણ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે પણ વિદ્યાર્થીઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે।
તો ચોક્કસથી જો વાત કરીએ તો 50 વૈજ્ઞાનિકોએ દિવસ રાત ઉજાગરા કરીને જો વાત કરીએ તો 50 દિવસ તે લોકોએ દિવસ રાત ઉજાગરા કરીને ચંદ્રયાન 3 ને સફળ કરવા માટે કામગીરી કરી છે. ચોક્કસથી કમાન્ડ સેન્ટરમાં પણ ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ભારત દેશ માટે આજે ગર્વનો દિવસ છે, કેમ કે ચંદ્રયાન 3 નું લેન્ડિંગ આજે સફળ થવાનું છે. સફળ એટલે કહી દઉં છું કેમ કે મને અને પૂરા દેશવાસીઓને અને ઈસરોને વિશ્વાસ છે કે આ મિશન સફળ જ જશે. તે માટે હું કહી રહ્યો છું કે આજે આ દિવસ ગર્વનો જ સાબિત થવાનો છે. આપણી સાથે એક બાળક જોડાયો છે, વૈદિક જૈન કરીને, કે જેણે ચંદ્ર માટે એક એસે લખ્યો છે. તેની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું આપણે. वैदिक, आपने चंद्र के बारे में ऐसे लिखा है, क्या लिखा था ऐसे में? एक्चुअली मैंने पूरा जो चंद्रयान का हिस्ट्री है ना 1, 2, 3, एक्चुअली मैंने 1 तो मतलब देखा नहीं है, उसकी वीडियोस देखी बट मतलब ऐसे लाइव नहीं देखा है. लाइव मैंने मतलब ऐसे ऑनलाइन देखा है, वीडियोस देखे चंद्रयान 2 के और 1 के, और 3 को तो मतलब न्यूज़ वगैरह सब पे था, तो 3 तो अभी लेटेस्ट देखा ही है वो 14 जुलाई को. तो मतलब मैंने मेरी कल्पना लिखी है कि जैसे हम चांद पे जाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेंगे, वहाँ पे अंडरग्राउंड रहेंगे, मतलब एक चेम्बर बना के रहेंगे, आप जैसे भी रहेंगे. और एक और चीज मैंने मतलब उसमें इंक्लूड की है कि जो चंद्रयान है, मतलब चंद्रयान है ना, वो एक रॉकेट नहीं है, वो ना ही एक सैटेलाइट है, वो मेरे हिसाब से फीलिंग है. मतलब जैसे 1 था, 1 अच्छे से गया, उसने वहाँ पे वाटर स्पॉट किया, काफी अच्छा था. 2 गया लैंड, मतलब जब वो लॉन्च हुआ तो खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि 2 भी लॉन्च कर दिया है. बट जब हमको पता चला ना कि मतलब ऐसा उसका कनेक्शन लॉस हो गया और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, तो वो थोड़े सैड हो गए हम. बट फिर अभी जब जैसे मतलब पता चला कि चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, वो जाएगा साउथ पोल पे वर्ल्ड में पहली बार, मतलब पहली बार ऐसा होगा कि कोई साउथ पोल पे जाएगा चंद्रयान. तो उसको देख के भी बहुत खुशी हुई. सब बोल रहे हैं कि अभी मतलब आज शाम को लैंड हो जाएगा और देखते हैं क्या होता है. और फिर एक और चीज़ है मैंने इंक्लूड की है अपने ऐसे में, जो है जो मून है वहाँ पे हीलियम 3 करके गैस पाई जाती है, जो यहाँ पर तो ना के बराबर ही मिलती है, जो मतलब एक ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं. उसको अगर हम किसी तरीके से यहाँ अर्थ पर ले आते हैं तो काफ़ी कुछ ईजी हो जाएगा और मतलब एनर्जी मेकिंग इजी हो जाएगी. बस इतना ही मैंने इंक्लूड किया है, और चांद की दुनिया वगैरह के बारे में इंक्लूड किया है. और क्या क्या जानते हो चांद की दुनिया के बारे में? और तो चांद को मुझे ये पता है कि चांद और पृथ्वी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है. और चांद जो है मतलब सबको ऐसा लगता है कि चांद बस एक वाइट कलर का गोला है, उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बट उसका बहुत कुछ काम है. देखा जाए तो रात को अगर चांद ना हो तो जो रोशनी है वो हमारे तक पहुंचेगी नहीं. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चांद जो है ल्यूमिनियस है, मतलब जो चांद है वो खुद की रोशनी देता है, बट जो सन होता है ना वो उसकी तरफ रोशनी डालता है, जैसे हमारी पृथ्वी की तरफ भी आती है, और वो जो चांद होता है ना वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है. और मतलब मेरे को इतना तो कुछ नॉलेज नहीं है, बट जितना था उतना मैंने आपको बता दिया. आपने जो ऐसे लिखा था, आपके साथ दूसरे भी बच्चे कंपटीशन हो गए, किस लाइन पे आपको ऐसे में विनर आप हुए? स्पेशली आपने ऐसे में ऐसी क्या बात लिखी थी चांद के बारे में जो और किसी बच्चे ने नहीं लिखी थी? मेरे हिसाब से मेरी कल्पना और वो हीलियम 3 वाली बात, वो आई डोंट थिंक किसी ने लिखी होगी. और मेरी कल्पना तो मैंने आपको बताई. मेरे हिसाब से जैसे हम मतलब अभी जो इलॉन मस्क है वो कह रहा है कि मार्स पे जाएंगे रहने. मार्स पे अगर हमको हैबिचुअल मतलब हैबिटेट नहीं मिला, मतलब क्लाइमेट अच्छा नहीं मिला, तो फिर हमारे पास जुपिटर का मून है, बट वो काफ़ी दूर हो जाएगा. मार्स भी कम दूर तो नहीं है, बट फिर हमारे पास मून बचता है. तो मून एक सहारा होगा हमारे लिए रहने के लिए. अगर हमको मून एक्सप्लोर करना है, हम अंडरग्राउंड रह सकते हैं. और एक और चीज़, जो चंद्रयान है
वो साउथ पोल पे उतरेगा तो साउथ पोल अभी तक किसी ने नोटिस तो किया है, बट उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। मतलब कैसे वहाँ पे लाइफ है, वहाँ पे कितना वाटर है, वहाँ पे कुछ वॉल्केनिक एक्सप्लोजन वगैरह तो नहीं है। और एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे एक खतरा तो हमेशा बना रहेगा एस्ट्रॉयड गिरने का। बट तब भी अगर हम अंदर अंडरग्राउंड रहे तो हो सकता है। और तो बस यही थी मेरी कल्पना, और ऐसा था मेरा कि वहाँ पे वाटर होगा, बट और कुछ एक्स्ट्रा हमको ऐसा मटेरियल मिल जाए, जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम जैसा कुछ ऐसा पदार्थ मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हम हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी 118 है, एक्चुअली 120 है, 120 है, बट 2 के तो नाम नहीं दिए हैं, सो 118 है देखा जाए एलिमेंट्स। सो अगर हम मून पे एक और एलिमेंट ढूंढ लेते तो 121 हो जाएंगे, बट उसका अभी नाम देना भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। देखिए, थोड़ा ही अभी जो मेरा क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है और मुझे पूरा विश्वास है आप उसका जवाब दे ही पाओगे। चंद्रयान 2 है जो वो क्यों फेल हुआ था? सर एक्चुअली क्या हुआ, उसका जो कांटेक्ट था ना, सिग्नल कांटेक्ट, वो जो हमारे इसरो के जितने भी हेडक्वार्टर टाइप वहाँ पे थे ना, जितने भी कैसे बताऊँ, जहाँ से हमारा पूरा कांटेक्ट था उसके साथ, सो वो टूट गया बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। तो जैसे वो दूर गया ना, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से जो बीच में कांटेक्ट था वो टूट गया और जो फेल हो गया चंद्रयान 2। मेरे हिसाब से तो यही था, बट अगर हम और एक आखिरी सवाल, कितना एक्साइटेड हो आज के दिन को लेके? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मेरे को ऐसे कंफर्म नहीं है 537 या 527, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को इस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं है कि वो पहुंचेगा, मुझे इस चीज़ की एक्साइटमेंट है कि हमने पहली बार वर्ल्ड में ये चीज़ की है। बस यही मेरी एक्साइटमेंट है और मैं चाहता हूँ ये बनी रहे। આપણી સાથે એક બીજા પણ જોડાયા છે, નિશ્ચલ કરીને એક વિદ્યાર્થી છે આપણી સામે। નિશ્ચલજી, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी अब क्या कर रहे हो? मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ अभी। निश्चल जी, आज एक प्राउड डे है, क्या कहेंगे आप, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि साउथ पोल पर कोई जा पा रहा है। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो कुछ कंट्रीज़ ने ऐसा बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है, पर हमें इंडिया को इसरो पे विश्वास था पूरा और इस वजह से अब ये हो पा रहा है पॉसिबल। तो ये वेरी प्राउड मोमेंट है हमारे पूरे कंट्री के लिए। और जिस तरह इसरो ने मार्स मिशन कंप्लीट करा था फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, वैसे ही चंद्रयान 3 भी कर रहा है साउथ पोल पर जाकर, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए। खास करके ये बताइए, आप चंद्रयान 2 का जब मिशन फेल हुआ था और अभी ये सफलता मिल रही है, कैसा, किस तरह का एक्साइटमेंट लेवल आप में? एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि चंद्रयान 2 के टाइम भी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से जैसे वो हो नहीं पाया तो एक निराशा हुई, पर हमें विश्वास था इसरो के ऊपर और जैसे पूरे इंडिया ने विश्वास दिखाया और इसरो ने इस बार अब करके दिखाया है कि चंद्रयान 3 पूरा पॉसिबल हो रहा है साउथ पोल पर जाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। આપણી સાથે આ વિષય ઉપર વાત કરવા માટે ગુજરાત સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના એક તજજ્ઞ જોડાયા છે। मैडम जी, क्या नाम है आपका? पूनम भार्गव। पूनम जी, पहले तो ये बताइए कितना एक्साइटेड है आप इस मिशन को लेकर? अरे इस मिशन को लेके तो पूरा देश एक्साइटेड है और मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और हम सभी बच्चों का, जो हम बच्चों के साथ में काम करते हैं तो बच्चों का भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। इस समय एक एक बच्चा अपनी तरह से सोच रहा है कि जैसे चंद्रमा पे जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, तो वो कल्पना भी हम चित्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ऐसे के माध्यम से उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम आप लोगों के साथ में भी शेयर करते जाएंगे। बच्चे अपनी तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्कूलों में प्रार्थना हो रही है। हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनिटी साइंस सेंटर है वो हर डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में गए हैं, वहाँ पे जाके वो बच्चों का उत्साह देख रहे हैं। वहाँ पे बच्चे की जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें चंद्रयान के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी तो बच्चों के पास है ही, लेकिन वो लोग भगवान से अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर तो हो ही जाना चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे हमारे साथ में साइंस सिटी में पूरे दिन में जो सैक इसरो के साइंटिस्ट हैं वो लोग आने वाले हैं और वो आके हमारे साथ में बच्चों के साथ में चंद्रयान 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में और चंद्रमा में क्यों जाना ही है उसके बारे में बच्चों को प्रेरणा देंगे और उनसे बातें करेंगे।
खास करके आज साइंस सिटी में क्या प्रोग्राम रखा हुआ है इसको लेके? साइंस सिटी में हमारा सुबह से प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कैसा होगा कि हमारे पास हम लोगों ने एक साइन बोर्ड बनाया है जिसमें बच्चे आके साइन करेंगे और अपने चंद्रमा की कल्पना के बारे में या चंद्रमा को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं वैसा मैसेज उस पर उकेरेंगे और उसके बाद में वो हम सैक इसरो के साइंटिस्ट को देंगे कि हमारे बच्चों का चंद्रमा के लिए ये मैसेज है। उसके अलावा यहाँ पे चित्र स्पर्धा है, एक मिशन टू मून, वॉकिंग ऑन द मून करके एक मूवी है IMAX में, वो दिखाई जाएगी। और उसके अलावा सैक इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे जो उन बच्चों के वो चंद्रयान के बारे में व्याख्यान देंगे और बातें करेंगे बच्चों के साथ में। चंद्रयान 1, 2, 3 सब में क्या अंतर रहा, आप क्या समझते हो? चंद्रयान 1, 2, 3 में धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। जैसे एक गया उसके बाद दूसरा तो ऑलमोस्ट लैंड हो ही गया था, थोड़ा सा छूट गया। आपने देखा होगा, कल सुना होगा कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने भी चंद्रयान 3 को वेलकम किया। तो वो थोड़ा सा हमारी एक चूक हुई थी जिससे सीख के आज हमारे साइंटिस्ट में, हमारे पूरे देश में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इस बार तो हमको लैंड करना है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले पिछली बार जहां थोड़ा सा एरिया बताया गया था कि यहाँ पे आपको लैंड करना है, इस बार चंद्रयान 3 को बहुत बड़ा एरिया दिया गया है कि आप उसमें से चूज करो कि अगर वहाँ गड्ढा है तो आप दूसरी जगह पे लैंड कर सकते हो। और ये सारा प्रोसेस आप बिलीव नहीं करेंगे, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। मतलब अगर हम यहाँ से सिग्नल भेजेंगे चंद्रयान को तो 2 से 2.5 सेकंड लगता है, उतनी देर में तो वो लैंड कर जाएगा। मिली सेकंड में आपको डिसीजन लेना है, तो मिली सेकंड में डिसीजन इंसान के बस की बात है, लेकिन वो यहाँ से वहाँ तक भेज नहीं सकते। तो सारा का सारा प्रोसेस उसके अंदर में ऑटोमेटिक कर दिया गया है, तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है। आप सोचिए हमारे देश में रोबोटिक्स कितना आगे बढ़ गया है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है कि उसको कहाँ लैंड करना है, कैसे लैंड करना है और कितना स्पीड उसका हो गया है कि हाँ चलो अब मैं सुरक्षित तरीके से लैंड कर सकता हूँ। तो जैसे ही विक्रम लैंड करेगा वहाँ से उसका एक गेट जैसा खुलेगा और उसमें से रोवर निकल के बाहर आ जाएगा। और ये सब 5:47 से शुरू होगा, तो उसका इंतजार तो अभी बहुत लंबा लग रहा है। चंद्रयान 1 ने क्या एक्सप्लोर किया था, चंद्रयान 2 है वो क्यों मिशन फेल गया, और चंद्रयान 3 जो सफल ही जाने वाले, मुझे तो पूरा विश्वास है, तो वो क्या एक्सप्लोर रहेगा वहाँ पे? चंद्रयान 1 और 2 ने क्या किया कि हमको चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजी। वो फेल पूरी तरह से फेल तो हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी उसका ऑर्बिटर बहुत सारी जानकारी दे रहा है और उस जानकारी के हिसाब से ही चंद्रयान में 3 के लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने को मिले हैं। अभी चंद्रयान 3 वहाँ पे जाएगा तो वहाँ जो सीस्मिक एक्टिविटी होती है उसके बारे में बातें हमको इन्फॉर्मेशन देगा। वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे कैसा वातावरण है, उसमें गड्ढे हैं तो वो लगभग क्यों है, या उसके वहाँ पे क्या क्या मटेरियल मिलता है, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके लिए हमने यहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है जो एक्चुअली में लूनर साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ हमारे साइंस सिटी में आने वाले हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग यहाँ पे आइए, उनसे जुड़िए और ये सब के बारे में और जानकारी लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जे लास्ट 15 मिनट ऑफ द टेरर नाम क्यों दिया गया है उसको? 15 मिनट टेरर इसीलिए दिया गया है कि जैसे ही वो चंद्रमा के पास में आएगा चंद्रयान, उसके बाद क्या होगा कि वो ऑर्बिट से निकल जाएगा। चंद्रमा का जो ऑर्बिट है उसके अंदर घूमना आसान होता है। आप समझिए उसका ग्रेविटी के साथ में पुल है तो वो घूमता रहेगा, लेकिन उसने ऑर्बिट छोड़ दिया तो वो फ्री फॉल हो गया। अभी उसको फ्री फॉल नहीं होने देना है, क्योंकि फ्री फॉल हो गया तो वो क्रैश करेगा। तो उसको हमें थ्रस्ट रॉकेट्स उसके जो है वो बाहर फेंकेंगे, जिससे वो उसको पीछे की तरफ खींचेंगे और उसकी गति को कम करेंगे और धीरे धीरे उसको लैंड कराना है। आप समझिए जैसे पैराशूट से ऐसा धीरे धीरे लैंड, ऐसा ही उसको कराना है, लेकिन उसका स्पीड को कम करना है, ग्रेविटी का फ्री फॉल नहीं होने देना है। और वो समय पे ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। तो उस समय जैसे ही वो ग्रेविटी से ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो उस पे हमारा इसरो का या साइंटिस्ट का कंट्रोल नहीं रहेगा, वो सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस जो उसके पास है उसमें रहेगा। इसीलिए उसको हम टाइम ऑफ टेरर कहते हैं। वो 15 मिनट बहुत क्रूशियल होगा और वो आशा करते हैं कि वो लैंड अच्छे से कर जाएगा। ચોક્કસથી દેશ માટે તો આજે ગર્વનો દિવસ છે જ, પરંતુ આ હતા પૂનમજી જે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના છે, તેમણે ટેકનિકલ ભાષા સમજાવી છે કે 15 મિનિટ જે છે, મિનિટ ઓફ ધ ટેરર શા માટેને કહેવામાં આવે છે। ચોક્કસથી તમામ દેશવાસીઓની આશા આજે સફળ જ જવાની છે, કેમ કે વિશ્વાસ છે તમામ લોકોને કે ચંદ્રયાન 3 છે આજે સફળ લેન્ડિંગ જ કરશે। કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે મેં દીપસિંહ રાઠોડ। અને આપણી સાથે આ વાત પર ડિસ્કશન માટે જોડાયા છે સાયુ સાહેબ, જ્યારે વાત કરીશું। સાયુજી, पहले तो ये बताइए कि इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी सर? देखिए, चंद्रमा का जो आज लैंडिंग का डे है निर्धारित के हिसाब से, तो ये आज पूरा
इंडिया एंड पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा गर्व एंड गौरव का दिन है, क्योंकि वो चंद्रमा के ये पहली बार साउथ पोल को जा रहे हैं। साउथ पोल का ऊपर में लैंडिंग करेंगे। साउथ पोल इज द मेन रिसोर्स सेंटर ऑफ द मून। तो वहाँ से कैसे वहाँ पे इनका वाटर है, इनका सॉइल है, इनका टेम्परेचर है, इनके सारा सिस्टम को स्टडी करके एक अच्छा इकोसिस्टम होगा। क्योंकि हम लोग चंद्रयान का मिशन का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग मून को हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन करेंगे। सपोज मून हमारे यहाँ पे 4 लाख किलोमीटर दूर में है, तो यहाँ से सपोज हम लोग उड़ान भर करके जाएंगे तो मून का ऊपर में लैंड करके वहाँ पे हमारा रॉकेट को हम लोग रिफ्यूल कर सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट को सेट कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम लोग छलांग लगा सकते हैं मार्स के लिए, कोई दूसरा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इसी के लिए ये चंद्रयान का आज का जो मिशन है ये कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो हमारा इंडिया चौथा कंट्री के हिसाब से स्पेस इलाइट क्लब में वो ज्वाइन हो जाएगा। इसके साथ इनका जो टेक्नोलॉजी एक बार माने हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसमें लिए हमारा काफ़ी जो स्टार्टअप एंड हमारा इंडस्ट्री इसमें जुड़ जाएंगे। इसके साथ हमारा जो पड़ोसी देश है इनको भी हम लोग मदद करेंगे एंड वो हमारा मदद लेंगे। तो ये हमारा इस इसरो एंड हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा ये है अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के लिए देखेंगे तो ये पूरा सारा एक्साइटमेंट सारा जगह में भरा हुआ है। एंड सबसे ज़्यादा हमारा गुजरात में हुआ है, क्योंकि गुजरात इज द लैंड ऑफ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई। एंड इनके जो बनेला इंस्टीट्यूट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहीं से चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा इनका जो हार्ट बोला सकते हैं, वहाँ पे कैमरा, इनका एंटेना, इनका पेलोड वहाँ पे डिजाइन हुआ है। एंड वहाँ पे जो साइंस कंपोनेंट है वहाँ पे हमारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में इनका नक्की हुआ है। तो ये सारा कैसा को लेकर के आज गुजरात साइंस सिटी में हम लोग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये चंद्रयान 3 का मिशन, इंडिया मून मिशन, इंडिया के इसके मून मिशन के बियॉन्ड क्या हो सकता है, सारा को लेकर के हमारा स्पेस साइंटिस्ट, लूनर साइंटिस्ट ये पूरा वहाँ पे है। हमारा आईमैक्स थिएटर में हमारा वॉकिंग ऑन द मून का जो आईमैक्स 3D का एक्सपीरियंस हम लोग देने के लिए वो भी हम लोग प्रबंध किया है। इसके साथ हमारा 4 रीजनल साइंस सेंटर है, पाटन, भुज, राजकोट एंड भावनगर, वहाँ पे भी हमारा एलाबोरेट अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो लोग होता है वहाँ पे भी इनका अवसर ले सकते हैं। इनके साथ हमारा 33 जिला में जिला लोक विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। तो ये हम लोगों को सारा बच्चों का उत्साह, इनका जो इनको जो इमेजिनेशन है, इनको एक अच्छा तरीका से मोटिवेट करके इनको प्रेरणा दे सकते हैं कि ये लोग भी हमारा स्पेस साइंटिस्ट हो सकते हैं, स्पेस टेक्नोक्रेट हो सकता है एंड स्पेस को मानव कल्याण के लगाने के लिए इनको कैरियर को समर्पित कर सकते हैं। सर चंद्रयान 1, 2, 3, ये चंद्रयान 3 में क्या सर अपग्रेडेशन हुआ है? देखिए चंद्रयान 1 हमारा 2009 में गया था, वो इनका पहला सक्सेस था, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर में पानी का संधान किया। तो जो ये भी विश्व के लिए एक पहला डिस्कवरी था, कंट्रीब्यूशन था। चंद्रयान 2 हमारा एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था, वो हमारा लैंडिंग करते करते पूरा कुछ क्षण के लिए, कुछ पॉइंट के लिए हम लोग इनको मिस किया। बट वहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ लेसन लिखा, कि काफ़ी ट्रेनिंग सीखा, काफ़ी लेसन लर्निंग किया। तो ये लेसन को सारा को ले करके हमारा चंद्रयान 3 पैकेज बना हुआ है। तो वहाँ पे हमारा जो वहाँ पे जब स्लो डाउन करेंगे, टच डाउन करेंगे, इसमें जो 20 मिनट जो टेरर टाइम है इनको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इनको कैसा डिपेंड कर सकते हैं, इनके लिए मल्टी सेंसर लगा हुआ है। इनका जहाँ पे एरिया था हमारा उस टाइम एक छोटा एक डेफिनेट एरिया था, इसके जगह में हमारा लगभग 5000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जैसा दूर, माने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया को हम लोग एक्सपांड करके रखा हुआ है। इसके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक्सपेरिमेंट होता है, ये सारा चीज़ काफ़ी कन्फाइंड माने कॉन्फिडेंट लेवल के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसी को देखेंगे चंद्रयान 3 इज ए वेरी पावर पैक्ड पैकेज है। तो ये एक डेफिनेटली हमारा ये जो गया हुआ है, जो लंच व्हीकल में गया हुआ है, ये भी है हमारा मार्क 3 LMB मार्क 3, जो कि इनका नाम दिया है बाहुबली। तो इसी स्पिरिट एंड इसी मोशन के साथ चंद्रयान गया हुआ है। तो ये आज एक अच्छा स्टोरी हमको बताते हैं। सर ये जो चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, कितने बजे लैंड होगा, और ये लास्ट 15 ऑफ ईयर, जो लास्ट 15 ऑफ ईयर बोलते हैं, वो क्या चीज़ है सर? चंद्रयान 3 का जो टचडाउन का टाइमिंग है वो सारा कैलकुलेशन के साथ इसरो के द्वारा वो प्रचार किया गया है कि 6:04 में वो टच करेगा। ગર્વની વાત છે
લોકો અત્યારે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે શું થશે 6 વાગે, પરંતુ મને અને પૂરા દેશવાસીઓને વિશ્વાસ છે કે ચંદ્રયાન-3 મિશન સફળ જ જવાનું છે અને સફળ જ થશે, કેમ કે ઇસરોના ચીફ છે સોમનાથ એટલે ભગવાનના દર્શન, જ્યોતિર્લિંગના દર્શન, અને ખાસ કરીને પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં આ જે ચંદ્રયાન-3 છે એ લેન્ડિંગ થવા જઈ રહ્યું છે. તો પૂરા દેશ માટે આ ગર્વની આજે વાત થવાની છે અને ચંદ્રયાન-3 સફળ જ જશે. કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે મયદીપસિંહ રાઠોડ. તો ચોક્કસથી ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે દેશના ખૂણે ખૂણાની વાત કરીએ તો દરેક જગ્યાએ પૂજા અર્ચનાઓ થઈ રહી છે. મહત્વનું છે કે વિદેશમાં પણ ભારતીય સમુદાયના લોકો અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીના મોનેરોમાં ઓમ શ્રી સાઈ બાલાજી મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. જો વાત કરીએ તો ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં પણ ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે વિશેષ ભસ્મ આરતી કરવામાં આવી હતી. સાથે જ ભરતનાટ્યમ અને કુચીપુડી ડાન્સરની વાત કરીએ તો તે લોકો પણ તેમના ડાન્સ દ્વારા ચંદ્રયાન-3ના સફળ લેન્ડિંગ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. દહેરાદૂનના ટપકેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં પણ વૈષ્ણોદેવી ગુફામાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.